Hello everyone, I Ayush welcome you all to Jajit Defense Warrior. As today I am here with the next part theory of the trigonometric function. Previously we have discussed that what are the values of a fixed degrees or fixed theta as sine 30 is equals to 1 by 2 and cos 60 is equals to 1 by 2. So I've taught you all the values that where the cos and sec are positive in fourth quadrant, sin cosec are positive in second quadrant, tan and cot are positive in third quadrant. So such type of things I've told you. Now today we are going to discuss that what are domain and range of trigonometric function. Domain and range. What is domain? First of all, let us understand that what is domain. Domain is the value of x at which the function is defined. Means the value of theta represents the domain of the trigonometric function. Trigonometric function means they are in polynomial function or in algebraic function. The value of x at which the function is defined is called domain of algebraic function. But in trigonometric function, the variable is theta. So the whole value of trigonometric function depend upon the theta. So the value of theta represents the domain of the trigonometric function. Means the value of theta at which the trigonometric function is defined is known as domain. And the resultant value means after putting the value of any domain, what value we get is known as range of that function. The domain of value of theta are in degrees or in radian, and the range is in real number. Generally, the domain of the trigonometric function is a real number, but in certain cases, means in very certain cases, a few angle values are excluded because it results in a range as an infinite value. Okay, as the domain of sine theta, you can see the table given below. That domain of sine theta is from minus infinite to plus infinite. Means domain of sine theta is real number. Any value of theta we can put, then we will get, then it will define the function will be defined at that value, any real value of theta. So it's here the domain is minus infinite to infinite, but the range is defined from -1 to +1. As in the previous video I have taught you that what is that, how are the diagram of sine theta, cos theta, tan theta, cot theta, all the diagram of trigonometric function I have shown you that how they are drawn. So in that diagram only I have explained you that the value of sine always lie between -1 to 1. Means its minimum value will be all -1 and its maximum value is 1. No value of theta you can find, that while putting any value of theta you cannot find any value which will be more than 1 or which would be less than -1. It will be always and always either equal to -1 or greater than -1, or either equal to 1 or less than 1. Okay, now a few angles values are excluded because it results in a range as an infinite value. The trigonometric function are periodic function. Means the trigonometric function are periodic. As I have shown you the graph, every graph was repeated after fixed interval of time. As graph of sine, that was repeated at what interval of time? It was repeated at after every 2 pi. Means first from start from 0 it goes to its maximum value at pi by 2 90, then return back to 0 at pi means 180, then again at 3 pi by 2 means 270 degree it reaches its minimum value -1, then again at 2 pi means 360 degree it reaches its value. वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 360 डिग्री पर उसकी वैल्यू आ जाती है 0. तो 0 से स्टार्ट करके 360 तक वो जीगा, 0 टू 2 पाई, वो इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन टाइप का बना हुआ है. अगर आपने वेव चैप्टर कहीं फिजिक्स में पढ़ा होगा तो ये ऑसिलेशन, तो एक कंप्लीट एक वन ऑसिलेशन हुआ, और मीन्स इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन मीन्स
एक वैल्यू, एक जैसा डायग्राम, एक जैसा ग्राफ हर बार बनना है। अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं 2 पाई से 4 पाई, तो वो ग्राफ भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे 0 to 2 पाई बना हुआ है। ओके, इस तरह यहाँ पे टेन थीटा की डोमेन माइनस इन्फिनिट, टेन और साइन की डोमेन जो है वो ऑल इक्वल रहती है, और क्योंकि दोनों की थीटा की डोमेन जो होती है वो रियल होती है, और इनकी रेंज जो होती है वो -1 से +1 होती है। ओके, इनके ग्राफ भी ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं। अब आते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा में क्या होता है कि टेन इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन थीटा मैंने आपको क्या बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये होता है। तो अगर हम कोई वैल्यू डिफाइन करनी है, ऑलवेज जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट वैल्यू इज डिफाइन only and only when the value here, if the denominator is 0, means if cos theta is 0, then value will not be defined. So just remember one thing, that what we have to do, that cos theta should not equals to 0, and cos theta कब 0 होता है, cos theta कब 0 होता है, cos theta ये कब 0 होता है, ये 0 होता है cos थीटा पाई 90 पर, मीन्स पाई/2 पर। ओके, फिर कब होता है 3 पाई/2 पर। इन दो जगह cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस वजह से ये जहाँ पर cos थीटा जहाँ पर पाई का मल्टीपल, अगर पाई/2 का मल्टीपल, सी हेयर यू कैन सी, वेट लेट मी शो यू, यहाँ पे पाई/2 का मल्टीपल आप देख रहे हैं, ये पाई/2, दिस पाई/2, इसका मल्टीपल अगर ऑड है, मीन्स पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2, 11 पाई/2, लाइक दिस। अगर हम ये माइनस कर दें रियल वैल्यूज़ में से, तो ये हमारी जो डोमेन होगी वो क्लियर हो जाएगी। ओके, अब अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज इसकी जो होगी वो -∞ से +∞, क्योंकि टेन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -∞, और टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +∞। इन्फिनिट क्यों होती है, क्योंकि cos 0 जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ पे वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, नॉट डिफाइन को हम लोग इन्फिनिट कंसिडर कर लेते हैं। अब आते हैं कॉट थीटा की तरफ। कॉट थीटा मतलब, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कॉट थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये होता है। तो यहाँ पे क्या हमको देखना है कि साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। साइन 0 कब होता है, n पाई पर, मीन्स पाई का n मल्टीपल्स, मीन्स 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, on all these values the cos theta will be not defined. So will for domain, that angle, that only theta will we can take as domain where the function is defined. So we will just subtract it from real number, means r minus n pi is the domain of cot theta. Likewise, same is there, that value of the domain of tan theta equals to value of domain of sec theta, and domain of cot theta is equal to domain of cos sec theta. But the range here of sec theta and cosec theta differ. Sec theta and cosec theta differ because sec theta is equal to 1 upon cos theta, and cosec theta is equal to 1 upon sin theta. So the range of sin theta is subtracted from real number. That is why, because at no value of sec theta will ever come which would lie between -1 to 1. It may be 1 or it may be +1, -1 or +1, but it will never be greater than -1. It will never lie between that it is greater than -1 and less than 1. Okay,
So now moving forward, trigonometric function identities. Trigonometric function identities are broadly divided into reciprocal identities, Pythagorean's formula, sum and difference of trigonometric function identities. Formula for multiple and sum multiple angles means trigonometric function identities means there are some formula which were designed or by using different formula and some difference from few other identities made. Few are the made by the sum and product of identities. Few are by use of right angle triangle. All this because the formula are derived by many of the means, but we are not going to study all that means because it will take a maximum time, and that is not in our course also. So we have to focus that what are those formulas and how can we use those formulas to solve our problem which will be given to us in our syllabus. हमको क्या देखना है कि कौन कौन से फॉर्मूला हमको दिए जाएंगे. हमको फॉर्मूला याद करने में ये मतलब नहीं है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, कैसे फॉर्मूला आया, कैसे ड्राइव हुआ, किसने बनाया. हमको इससे कोई मतलब नहीं. हमको फार्मूला याद करना है और फार्मूला याद करके ही हमको उसका यूज़ करके हमको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस. तो आइए देखते कौन कौन से फार्मूले हमको दिए हुए हैं. सबसे पहले बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़. रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ दैट कोसेक थीटा is equal to 1 upon sin theta, sec theta is equal to 1 upon cos theta, cot theta is equal to 1 upon tan theta, sin theta is equal to 1 upon cosec theta, cos theta is equal to 1 upon sec theta, and tan theta is equal to 1 upon cot theta. These all properties are the base of trigonometry. Okay, just revise it thoroughly, go through it. Now moving further, Pythagorean identities. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and cot square theta is equal to cos square theta. These three are the very small and fundamental properties or fundamental identities of trigonometry. Now by we will have use of these identities in problem solving, but that will not be used at very large scale. The formula which will be asked in number of time that I will tell you. Here the formulas is given that sin x plus y means at theta x place of theta we have put the value x plus y. So sin x plus y equals to sin x plus cos y plus cos x sin y. And so just all of you take a screenshot of this slide and note it down, all this formula on any one of the paper, or just go through it thoroughly twice or thrice a day. You should always have learned, you should सबको ये फॉर्मूले एकदम ऐसे याद होने चाहिए कि आपके दिमाग में हमेशा कभी भी कोई आपसे सोते टाइम पे पूछ लिया तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए. जैसे साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. कॉस एक्स प्लस वाई क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई. इनको याद करने के मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको. अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ऐसे याद करना चाहिए याद कर सकते हैं. साइन के साथ क्या होगा, दोनों साइन एक्स प्लस वाई. यहाँ पे आप देखिए ये साइन एक्स प्लस वाई वाला और साइन एक्स माइनस वाई वाला, दिस टू फॉर्मूले. ये फॉर्मूले कैसे याद करेंगे आप, जहाँ पे साइन का फॉर्मूला होगा वहाँ पे दो टर्म आएंगे. साइन दोनों टर्म में दो टर्म डिवाइड कैसे होते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड करता है. तो साइन एक्स कॉस वाई पहले में भी है, साइन एक्स कॉस वाई दोनों दूसरे में भी है. उसके बाद प्लस माइनस का साइन लगता है. अगर साइन एक्स माइनस वाई पूछा है तो माइनस लग जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई पूछा है तो प्लस लग जाएगा. फिर आगे आ जाएगा कॉस एक्स साइन वाई और कॉस एक्स साइन वाई, दोनों में आ गया. हमको एक बार एक्स साइन के साथ ले लेना है और वाई कॉस के साथ ले लेना है, फिर प्लस माइनस लगा के कॉस एक्स के साथ ले लेना है, साइन वाई के साथ ले लेना है. ओके, अब देखते हैं हमारे कॉस के फॉर्मूले. कॉस के फॉर्मूले क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स माइनस वाई. दीज टू फॉर्मूले ऑफ कॉस. इन फॉर्मूले में क्या है, कॉस जब भी आएगा तो कॉस के टर्म में ये याद रखना है कि कॉस के टर्म में दोनों कॉस साथ में रहेंगे. कॉस साथ में साइन साथ में, कॉस साथ में साइन साथ में, मीन्स कॉस एक्स कॉस वाई साथ में माइनस साइन एक्स साइन वाई. हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो ये है कि एक्स कॉस एक्स प्लस वाई
यहाँ पे उल्टा केस चलता है, साइन में से था एक्स प्लस वाई पूछा तो प्लस का मतलब प्लस लगा देंगे, लेकिन कॉस के साथ उल्टा केस चलता है। कॉस अगर एक्स प्लस वाई पूछा है तो बीच में माइनस का साइन आएगा, मीन्स कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और अगर कॉस एक्स माइनस वाई पूछा है तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ओके, अब देखते हैं अगला फॉर्मूला अपने टेन के फॉर्मूले। टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई एंड टेन एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूले भी सिमिलर हैं, बस टेन एक्स आप कोई एक फॉर्मूला टेन एक्स प्लस वाई याद कर लेंगे, फिर टेन एक्स माइनस वाई याद कर लीजिए। दूसरे फॉर्मूले में के लिए क्या करना है कि जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। ओके, अब बढ़ते हैं हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला और डबल एंगल फार्मूला मीन्स डबल एंगल आइडेंटिटीज, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है कि कॉस टू थीटा का फार्मूला बताओ या फिर कॉस थीटा बाई टू का फार्मूला बताओ। तो कॉस ए बाई टू मीन्स कॉस थीटा बाई टू का फार्मूला क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस ए बाई टू, एंड कॉस ए बाई टू का फार्मूला क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस कॉस ए बाई टू। तीनों हाफ एंगल फार्मूले में आप देख रहे हैं कि तीनों में कॉस है, तीनों में आप देख रहे हैं कॉस है। एक में क्या है कि वन माइनस कॉस ए बाई टू है, वन माइनस कॉस ए बाई टू है। साइन के साथ देखिए, साइन ये ऐसे याद रखिए, साइन के साथ माइनस, साइन के साथ क्या आ गया माइनस आ गया, कॉस ए बाई टू की जगह क्या आ गया, कॉस के साथ क्या आ गया प्लस आ गया, और टेन के साथ आ गया, टेन के साथ आ गया डिवाइड आ गया, मीन्स ये आ गया, ये वन प्लस अपॉन में वन प्लस कॉस ए आ गया, और बाकी बाहर कॉस साइन टेन के साथ ही माइनस ये ही रहा। ओके, टेन के दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, ऐसे वन माइनस कॉस ए प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉस ए, ये और एक और दिया हुआ है दैट साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, एक और वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये सब फॉर्मूला आप वैल्यू इधर उधर करके आप वैल्यू फॉर्मूला ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अब देखते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज से पक्का 110% श्योर है, मतलब 2000 रुपये की शर्त में लगा सकते हो कि इससे पेपर में क्वेश्चन पक्का आएगा, आना ही आना है, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, फिर किसी क्वेश्चन में छुपा के पूछेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से पेपर में फॉर्मूला पूछेगा। आगे आइए देखते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज क्या होती है, मीन्स साइन यहाँ पे हाफ एंगल में क्या था, थीटा को आधा कर दिया था, मीन्स ए बाई टू कर दिया था, डबल एंगल में क्या होगा साइन टू ए हो जाएगा। ओके, डबल एंगल फॉर आइडेंटिटीज, डबल एंगल आइडेंटिटीज मीन्स साइन टू एक्स, साइन एक्स की जगह पर टू एक्स कर दिया, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो इन सभी फार्मूलाज को बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर कहीं बड़े पेपर पे नोट डाउन करके आप या तो अपने साथ रखिए या फिर कहीं पेस्ट कर दीजिए, कॉपी किताब में रखिए, जो आपके सामने हमेशा याद चलते हैं, ताकि आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले ऐसे फिट हो जाएँ कि पेपर में कभी भी आए तो विद इन सेकेंड्स यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सभी को अच्छे नंबर लाने हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और अगर ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो सारे फॉर्मूले एकदम बढ़िया से दिमाग में आपको याद होने चाहिए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग में एवरीथिंग। फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन सामने रहेगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। साइन टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन, और इसको और लिख सकते हैं कि दैट टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कॉस टू एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस टू एक्स के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं, और कॉस टू एक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 बहुत, ये वी वी आई पी है, आई विल राइट इट वी वी आई पी क्वेश्चन। ओके, नॉट क्वेश्चन, इट इज जस्ट फॉर्मूला, वी वी आई पी आइडेंटिटीज। cos 2x is equal to cos square x minus sin square x, और इट कैन बी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी लिख सकते हैं। cos 2x के, अब यहाँ पे अगर पूछेगा cos 2x का cos के टर्म में फॉर्मूला बताओ, या फिर क्वेश्चन में दे देगा कि cos x इज इक्वल्स टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x। तब हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तब हमको फॉर्मूला यूज़ करना है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन।
ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर हमको कॉस दिया हुआ है तो कॉस टू एक्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में साइन दिया है, साइन एक्स दिया है, तो कॉस टू एक्स कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर है एक्स। ये फार्मूला कैसे है, पहले वाले फार्मूले में अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स, हमको पता है कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर आप वो रख देते हैं तो दूसरा वाला फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाता है। और ऊपर वाले फार्मूले के लिए हम क्या करेंगे, अगर ऊपर वाले फार्मूले को हम जैसे कॉस टू एक्स दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर हम पहले फार्मूले को हम पहले फार्मूले को हम किससे डिवाइड करते हैं, सेक कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करने के साथ जब कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन जो मल्टीप्लाई वाला कॉस स्क्वायर एक्स को वो चला जाएगा अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसलिए फार्मूला बन जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखते हैं कॉट टू एक्स का फार्मूला। ये कॉट टू एक्स का फार्मूला नहीं, मोस्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन आप तब भी याद करेंगे क्योंकि कब पेपर में कौन सा फार्मूला पूछ लीजिए जाए, वी हैव टू स्कोर गुड हमको। सो फॉर स्कोरिंग गुड वी हैव टू मेमोराइज ऑल द फार्मूलाज, सारे फार्मूले अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। कॉट टू एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन टू कॉट एक्स। ये फार्मूला अगर हम टेन की टेन से हम कॉट का फार्मूला निकाल सकते हैं, सेक टू एक्स, सेक टू एक्स, सेक टू एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सेक टू एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स। कॉस सेक टू एक्स क्या होता है, कॉस सेक टू एक्स क्या होता है, इज इक्वल टू सेक एक्स, वही समझना है जो मैं बोल रहा हूँ, प्रोनाउंस कर रहा हूँ, SEC सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स बाई टू। ये फॉर्मूला होगा हमारा किसका, डबल एंगल फॉर्मूला है कॉस टू एक्स का। ओके, अब देते हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा साइन थ्री एक्स की वैल्यू क्या होगी, या फिर पूछ लेगा कि फोर साइन मीन्स, अगर वो उसने बोल दिया कि साइन एक्स दे दिया, साइन एक्स दे दिया 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थ्री एक्स, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर दे दिया कॉस एक्स इक्वल टू 2/5, फिर बोलेगा कॉस थ्री एक्स की वैल्यू निकालो, तो उसके लिए हमारे वैल्यू, अब हमको एकदम आसान सा क्वेश्चन, अगर तब आपके दिमाग में आएगा फार्मूला याद होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता और हमको नंबर मिल गया होता, लेकिन इसलिए आपको अगर फार्मूला याद करके नहीं जाएंगे तो कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन छूट जाएंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन मीन्स आप बहुत सारे बच्चों से, वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर मूविंग फॉरवर्ड टू यू, मीन्स हज़ारों बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे अगर आप उन्होंने 8 से 10 क्वेश्चन आपसे ज़्यादा कर दिया तो सेक टू एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने देख लिया था साइन, हाँ, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसमें हमको याद करने के लिए क्या करेंगे, साइन, साइन मतलब पहले आता है, पहले क्या आता है जो छोटा होता है, छोटा जैसे आप लाइन लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा वो आगे लगेगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो पहले हम देख रहे हैं कि पहले वाला जो टर्म है 3 साइन एक्स, इसमें कोई पावर नहीं है और नंबर भी आगे जो लगा है वो छोटा है, और फिर बाद वाला जो टर्म है वो क्या है 4 साइन क्यूब एक्स, मतलब नंबर ही बड़ा है और पावर भी बड़ी हो गई है, पावर क्यूब नहीं हो गई है। उसी तरह कॉस थ्री एक्स, कॉस क्या है सेकंड नंबर पे आया तो थोड़ा टेढ़ा है, ये उल्टा, हमेशा उल्टा काम करता है। उल्टा काम करने के लिए कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब एक्स, मतलब कि पहला जो बड़े है वो आगे लग जाएगा और जो छोटा है वो पीछे। ओके, अब देखते हैं tan थ्री एक्स का फॉर्मूला। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा फॉर्मूला, लेकिन आप इसको याद करने के लिए क्या करना है कि 3 tan x माइनस टेन क्यूब, अगर आप एक फॉर्मूले को 3-4 बार मेरे साथ ही बोल देंगे तभी आप फॉर्मूला याद हो जाएगा, जैसे 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, फिर से बोलते हैं 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, रिपीट अगेन 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं अगले आइडेंटिटीज की तरफ, प्रोडक्ट आइडेंटिटीज मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज 2 sin x cos y, 2 sin x cos y क्या होगा, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई।
ये क्या है, 2 sin x cos y क्या है, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ये फॉर्मूला बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन अगर कुछ हम पेपर की तैयारी करें देन वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द थिंग्स विच आर विल बी कमिंग इन आवर एग्जाम। सो sin x cos y क्या होता था, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। 2 cos x cos y क्या होता है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। और 2 sin x sin y इज इक्वल टू cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। Sum of identities. These formulas a bit are also important because ये फॉर्मूला कभी कभी क्वेश्चन में या नहीं आता, लेकिन कब किसी तरीके से कहीं पर घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। एक दो बार फॉर्मूला डायरेक्ट पूछे भी गए हैं, दैट cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होगा, बिकॉज दिस फॉर्मूला द लास्ट फॉर्मूला it differs at in every book. Every students forgot that what will be the formula of cos x minus cos y, because there are two formula of cos x minus cos y. One is there that minus sign, this minus sign, minus 2, not minus 2, this minus sign is at front, and somewhere it is written as sign not y in place of x minus y. To not, if we are not putting a minus here, if we are not putting minus there, then just write it down. Do not write it on x minus y, just in place of that write my y minus x by 2. Then this will be the theta if you are not putting minus here. Okay, so sin x plus sin y is equal to 2 sin x plus y into cos x minus y. sin x minus y क्या होगा, 2 cos x plus y upon by 2 into sin x minus y by 2. cos x प्लस cos y क्या होगा, 2 cos x प्लस y by 2 into cos x minus y by 2. ओके, cos x माइनस cos y मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स 12th क्लास में एक बिल्कुल नया चैप्टर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बहुत ही बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, मैनी पीपल fear from it, but today what we are going to discuss in the inverse, that is not very difficult, it is just an easy chapter. We are going to discuss in a different way, in a very easy way, so that all of you will get it in very clear manner that what does inverse trigonometry means. इन्वर्स को हम इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि हमको लगे कि नहीं कभी इन्वर्स टफ हमारे लिए था भी। पहले पढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते क्या है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर इन्वर्स रेशियो, मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, इन्वर्स रेशियो होते हैं। किस चीज़ का रेशियो होते हैं, ऑफ द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का के इन्वर्स रेशियो। मीन्स अगर हम पहले साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखते थे, तो अब यहाँ पे साइन को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो लिख जाएंगे साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स इफ साइन, अगर मैं लिखता हूँ साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं इनवर्स में लिखना चाहूँ तो लिखूंगा साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब यहाँ पर जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी, और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। डोमेन क्या होती है, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। इसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हैंस द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू, इसको ये चेंज कर देगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स कैन बी चेंज टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। मीन्स यहाँ पे हमारी जो रेंज हो जाएगी वो थीटा के टर्म में होगी, और जो हमारी डोमेन होगी वो रियल नंबर्स के टर्म में होगी। हेयर एक्स विल हैव द वैल्यू इन होल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट। फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 वी हैव थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 by 2. All the trigonometric formulas can be transferred into inverse trigonometric function formulas. Okay, हमको इनवर्स में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ना है, क्योंकि अब जितना हमारे सिलेबस में इनवर्स से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा है। एक दो क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर हम पूरे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के कैपेबल हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं आर्बिटरी वैल्यू क्या होती हैं। आर्बिटरी वैल्यू क्या होती है, द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर्मूला फॉर आर्बिटरी वैल्यू इज एप्लीकेबल फॉर ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मीन्स हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, 6। सो ये सभी के लिए वैलिड है। एंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ साइन टेंजेंट कोसेकेंड एंड द नेगेटिव वैल्यू
द नेगेटिव ऑफ वैल्यूज आर ट्रांसलेटेड एज द नेगेटिव ऑफ द फंक्शन, मीन्स साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन साइन टेन और कोसन कोसेक के साथ ही ये होगा। अगर हम कॉट सेक और कॉस की बात करें तो उनके साथ ये केस नहीं होगा, उनके साथ क्या हो जाएगा, पाई माइनस ऐड हो जाएगा। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, मेरे को होता है इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर फॉर्मूला पूछ लिया कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपको ऑप्शन दे दिया माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो जो बच्चे ये याद करके जाएंगे दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इस वाले रूल से वो लगा के चले आएंगे माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन वहाँ पे हमको क्या लगाना है कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ली या फिर डायरेक्ट फॉर्म में नॉर्मल आसान से याद करना है दैट साइन टेन और कॉसेक में माइनस साइन बाहर आ जाता है, फंक्शन वैसे ही रहता है, और कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस लग जाता है। ओके, अब आते हैं आगे दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रेसिप्रोकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आर सिमिलर टू द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। द रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन cosine, cosine, tangent and can be interpreted by the inverse trigonometric function formula. All the complementary functions sine, cosine, tangent, cosecant and secant, cosecant can be interpreted into reciprocal function. Reciprocal function क्या है देखते हैं। अगर हम साइन इनवर्स एक्स को चाहें तो लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। इसे हम साइन साइन एक्स क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक वन अपॉन एक्स। साइन को हम साइन एक्स को क्या लिखते थे, वन अपॉन कॉस एक्स एक्स, मीन्स कॉस एक्स जो रहता था नीचे रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमारा थीटा, थीटा सिर्फ चेंज होगा, थीटा अगर पहले एक्स था वन अपॉन एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स, और टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स वन बाई एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीन्स जिनका सम पाई बाई टू होता है। जैसे हम लोगों को ट्रायंगल चैप्टर में आप लोगों को नाइन टेंथ में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनके सम और एनी टू एक्यूट एंगल हु सम इज पाई बाई टू, मीन्स पाई बाई टू मीन्स 90, वो कोई भी दो एक्यूट एंगल, दो वो 90 से छोटे एंगल जिनका सम 90 होता है उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मीन्स जिनका सम, वैसे दो फंक्शन का सम 90 होगा उनको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड sum up to pi by 2. Here are the three formulas that यहाँ पे तीन फॉर्मूला दिए हुए हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई टू. So hope you all got what I taught you today, and all of you please just go through the table or the screenshot which you have taken today because of the formulas. If you have not taken, just take it today. I am just going to share the slide once again with you. First of all, take screenshot of these inverse formula. 1 2 3 done. Now take a screenshot of these these formulas, like triple angle formulas and some of identities formulas, especially the double angle formula, that's sin 2x, cos 2x, tan 2x, cosec 2x, sec 2x, cot 2x. Done. Now just take a screenshot of these, the reciprocal identities. Just do not write it down anywhere, just it will be in your mind. आपको क्या लिखना है, दैट सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज, हाफ एंगल फार्मूला और थ्री बेसिक फार्मूला, दीज फार्मूला स्पेशली वेरी वेरी बेसिक wait sorry these formula very basic formula, just write it down in your notebook anyhow and revise it properly. So hope you all got that what I taught you today. अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ सकें, अपने दोस्तों को समझा सके और हम पेपर निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सफल कर सके. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू. जय हिंद.